خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری جان مجھے لے چلتا ہے۔ پرسنل ذاتی صیغہ یہاں پر کتنی بار استعمال ہوا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے کس کا گزر؟ میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ عصا اور چیز اور لاٹھی ایک اور چیز، مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت کب کب؟ عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یہ جو زبور ہے، اس کے لیے میرے جذبات، مجھے لگتا ہے یہ زبور صحرا میں نخلستان کی طرح ہے۔ جب کوئی صحرا میں بھٹک جاتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، وہ گرمی کی شدت کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، گرم سورج اس کو ستا رہا ہوتا ہے، تو دور اسے صحرا میں ایک ہری بھری جگہ دکھائی دے جاتی ہے۔ وہاں پانی بھی ہے، وہاں چراگاہ بھی ہے، اور وہاں اس کی ضرورت کی تازگی کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نخلستان۔ یہ زبور صدیوں سے مقدسین کے لیے ایسا ہی کام کرتا رہا ہے۔ کلیسیائی تاریخ میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا جس میں اس زبور نے مقدسین کو حوصلہ نہ دیا ہو۔ یہ زبور خدا کی بھلائی کا شاندار ترین اظہار ہے۔ اس زبور کو میں ڈیلی پڑھتا ہوں، ڈیلی یہ مجھے تازگی دیتا اور کبھی پرانا نہیں ہوتا میرے لیے۔ اس زبور کو میں کہہ سکتا ہوں، مقدس داؤد نے بڑے خوبصورت مزامیر لکھے ہیں، لیکن مزامیر کا تاج، کراؤن آف سامز، مزامیر کا تاج زبور 23 ہے۔ کیا خوبصورت زبان استعمال کی گئی ہے، کتنی خوبصورت زبان میں اس نے خدا کو بطور چرواہا بیان کیا ہے۔ آپ اس کو جانتے، پڑھتے، ورد کرتے ہیں، لیکن آج میری دعا ہے یہ آپ کی زبان سے دل تک پہنچ جائے، یہ آپ کی زندگی اور ایمان کا حصہ بن جائے۔ آپ صرف اسے ایک ورد کی طرح اس وقت محض استعمال نہ کریں جب راتیں اندھیری اور ہولناک ہوتی ہیں، یہ آپ کی لائف کے لیے رہنما بن جائے۔ آپ کی زبان سے مصیبتوں میں، بے چینی کی حالت میں بے ساختہ اس کے الفاظ نکلنا شروع ہو جائیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں جیسے یہ زبور مجھے تازگی دیتا ہے، آج آپ کو بھی دے گا۔ آمین۔ اس سے پہلے کہ میں کلام کی طرف آگے بڑھوں، جلدی سے میں چاہتا ہوں کہ آپ آج جو روح القدس کی قدرت کی بارش ہوگی اس زبور کے وسیلے سے، اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ بعض اوقات خدا کی حضوری، خدا کی قدرت، کلام کی بارش، خدا کا جلال سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ خدا نے پریچر کے منہ میں کلام بھی رکھا ہوتا ہے، لیکن میں جیسا آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔
मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं हुआ, मुझे मुकाशिफा क्यों नहीं मिला, मेरा खुदा के साथ कोई रिश्ता क्यों नहीं बना। भाई तेरे दिल का ढक्कन बंद था, तूने अपना दिल खोला ही नहीं है। मजीद बात वाज़े करूं, बड़ी पसंद है मुझे ये मिसाल। एक औरत थी, उसका बेटा बीमार, एक ही उसका फर्जंद। तबीबों के पास, हकीमों के पास गई, ला इलाज करार दे दिया गया। एक शख्स मिला, हाँ इसका इलाज है, लेकिन खुदा तुझ पर रहम करे तो फिर तेरा बच्चा बचेगा। क्या करना है, बारिश हो और उसके साथ ओले भी पड़े, तूने जल्दी से बर्तन बाहर रख देना है, ओलों को जमा कर लेना है और उसके पानी में ये मेडिसिन डालकर तूने अपने बेटे को देनी है, फिर तेरा बच्चा बचेगा। हकीम साहब, बारिशों का मौसम नहीं, ओले कैसे पड़ेंगे? बस अब खुदा ही तुझे बचा सकता है। दुआ बड़ी की, मेरे बच्चे को बचा ले, बारिश भेज दे, ओले भेज दे, मेरे ऊपर रहम कर, मेरा एक ही बच्चा है। एक दिन बादल आ गए, घटाएं छा गईं, जोरदार बारिश हुई, खुदा ने दुआ का जवाब दे दिया, ओले भी गिरे, बड़ी खुश हुई, भागकर बर्तन सहन में रख दिया। जब बारिश बरस चुकी, ओले गिर चुके, बर्तन उठाकर लाई तो अपने सर पर दोनों हाथ रखकर पीटना शुरू हो गई। हाय मेरे खुदावंद, मुझसे क्या हो गया? जानते हैं क्या हुआ था? वो अपने बर्तन का ढक्कन उठाना भूल गई थी। तू दुआ भी करके आया, खुदावंद आज मुझे बरकत देना, मेरे साथ बात करना, गीत भी गाए, लेकिन अक्सर तू अपने दिल का ढक्कन उठाना भूल जाता है। ये बंद है बड़ी मजबूती के साथ। कभी रूहुल कुद्स की कुदरत को तूने अपने दिल पर असर अंदाज होने ही नहीं दिया। यहां पर लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है। आई कैन सेंस डीप लव ऑफ डेविड। खुदा की भलाई पर उसका एतमाद, एतकाद इस ज़बूर में रिफ्लेक्ट होता है। चरागाहों में अकेला बैठा, भाइयों ने कहा जा तू भेड़ें चरा, यह छोटा जो काम तू करेगा। ठीक है, मैं चला जाता हूं। बड़ा मेहनत तलब काम, दिन रात भेड़ों के साथ। बाप की नजर नहीं, किसी बड़े शख्स की नजर नहीं, लेकिन एदी नजर खुदा देते, खुदा दी नजर ए देते। खुदावंद की प्रस्तिश करता रहता है, खुदावंद की ताजीम करता रहता है। उसने अपने और भेड़ों के रिलेशन को देखा कि मैं इनको प्रोवाइड करता हूं, चारा मुहैया करता हूं, मैं इनको प्रोटेक्ट करता हूं और मैं इनको लीड करता हूं। एक चरवाहा ये तीन चीजें भेड़ों को देता है। पहली बात बोलिएगा, प्रोविजन, मुहैयगी। क्या? दूसरी बात प्रोटेक्शन, मुहाफजत। तीसरी बात गाइडेंस। और ये तीनों चीजें भेड़ें खुद से अपने लिए नहीं कर पाती। बताएं हाबिल कौन था? भेड़ों का चरवाहा। कितनी पुरानी बात है। यानी भेड़ें जब से पैदा की गई अपने आपे पर जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं की गई थी। वो डोमेस्टिक एनिमल, पालतू जानवर हमेशा से रही। भेड़ें ना अपने लिए प्रोवाइड कर सकती हैं चारा, ना उनको रहनुमाई, उनका नेविगेशन सिस्टम बड़ा खराब होता है, ना ही वो खतरे के सामने अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इसलिए उनको चरवाहे की जरूरत होती है। इसीलिए तो लफ्ज भेड़ चाल मौजूद है ना। एक भेड़ के पीछे बाकी भी सारी चली जाती हैं। इसको कहते हैं भेड़ चाल। यानी उनका अपना नेविगेशन सिस्टम है ही नहीं सिरे से। उसने देखा कि मैं अपनी भेड़ों को ये प्रोवाइड करता हूं। उसने अपने और खुदा के रिलेशन पर गौर करना शुरू कर दिया कि खुदा मेरे लिए भी तो यही करता है। वो मुझे प्रोवाइड करता है, वो मुझे प्रोटेक्ट करता है, वो मुझे गाइड करता है। तो बेसाख्ता ये ज़बूर उसके मुंह से फूटा, चश्मे की तरह बह निकला, खुदावंद मेरा चौपान है। काश आप फील कर पाए, बरबत उसके पास चरागाहों में बैठा हुआ, अकेला तन्हा, और गा रहा है,
खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ये पर्सनल रिलेशन है। वो ये नहीं कहता मेरे बाप दादा अब्राहम इसहाक याकूब का तो चौपान था, इस्राएल का तो चौपान था। वो कहता है मेरा चौपान। ये पर्सनल रिलेशन की बात है। वो मेरा खुदा है। यूहन्ना की इंजील 10वें बाब में हमारे रब्बूनी खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं और मेरी भेड़ें किसकी है ना, पर्सनल जी गल, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को, और नाम बनाम चरवाहा उनको बुलाता है। चरवाहे को भेड़ों के नाम मालूम है। इतना पर्सनल रिलेशन। तू बैठा यहां पर सोच रहा होगा खुदा मुझे नहीं देख रहा, खुदा मुझे नहीं जानता, खुदा मेरे हालात से वाकिफ नहीं। भाई बहन, वो तेरा नाम जानता है, वो तेरे हालात से वाकिफ है। तेरी मानित एक ज़कई छोटे कद का दुदकारा हुआ, माशरे में से निकाल दिया गया, कोई मजहबी शख्स उसके घर में कभी नहीं आया, यह सोचता कि सिर्फ उसको देख ही लूं। यस्सु गुजरा, गूलर पे चढ़ा हुआ था दरख्त पर, नीचे से देखा, यस्सु रुक गया। रुकना ही काफी था। यस्सु ने ना ले लिया, ज़कई आज मैं तेरे घर में रहूंगा, तेरे घर में जा उतरूंगा। आज सवाल कर, क्या तू ज़कई की तरह यस्सु को अपना पर्सनल चौपान बनाकर घर लेकर जाता है? तेरी डिजायर यह है कि चश्ती हद तक की सलाम दुआ, सिर्फ संडे दे संडे सिर्फ सलाम दुआ, फिर यस्सु तेरा चौपान नहीं। किसी मुगालते में ना रहना। अगर खुदा आपका चौपान है तो पहली ब्लेसिंग प्रोविजन क्या है? क्या कहता है? मुझे कमी ना होगी। जिसको कमी महसूस होती है, मैं एक पैरामीटर आपको देने लगा हूं, उसका चौपान खुदा नहीं है। जड़ा सैटिस्फैक्शन दे विच ही नहीं, जिसको कंटेंटमेंट, कनात, तसल्ली, इत्मीनान नहीं मिला, उसका चौपान खुदा नहीं। और जिसका चौपान खुदा है उसको कमी नहीं होती। अब आप कहेंगे साडा ते आटा मुक्या है, आप कहेंगे हमें तो किस्त अदा करनी है, वो किस्त के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। दुआ तो बड़ी करने हैं, बपतिस्मा भी लिया है, तुसी आंदे जे कमी ना होगी, तो हमें तो कमी ही कमी है। कैसे खुदा हमारा चौपान हो सकता है? बाय एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अपनी एग्जाम्पल देंगा। मैनू बड़ी देर मुगालता रहा कि ये चीज़ भी मुझे मिल जाए तो मैं फिर सेटिस्फाइड हूँगा, फिर मैं खुश हूँगा। मुझे मिल गई वो चीज़। मैं जब यहाँ वहाँ कलाम सुनाने के लिए जाता, लंबे सफ़र करने पड़ते, मैं थक जाता। मैं क्या, खुदावंद मैनू ना गड्डी दे ज़रा, फिर गल बनेगी। मैंने ये फेस किया है, पता नहीं आप इसको कैसे समझते हैं। जब भी कहीं जाना तो पहला सवाल करते थे, किस पर आएंगे आप? तो मैं कहना मैं लोकल ही आन दिया। बड़ी एम्बैरेसमेंट मुझे फील हो, गड्डी ते नहीं तुसी अपने ते आ रहे। मैं क्या, खुदावंद इंज लोग पुछदे नहीं, तू कुछ कर। लोकी ते गड्डी वाले पादरी नूं बुलांदे ने, ते मेरे कोल ते गड्डी कोई नहीं, ते मेरी पढ़ाई कित्थे काम आएगी? खुदा ने कहा चल तू ले लै गड्डी। एक दिन मैं दुआ में बैठा हुआ था, मुझे ऐसे सेंस मिली, तुझे मैं कहता कुछ छोटी मोटी गड्डी दे दे बस, खुदावंद लगा फिरांगा तेरी खिदमत दे ले। लेकिन मेरे दिल में आया, कोई आवाज़ नहीं आई थी, ना फरिश्ता पास आकर खड़ा हुआ था, बस मुझे फील हुआ कि मैं तेनों वड्डी गड्डी देनी है। मैं क्या, अच्छा खुदा। वो कोई एक हफ्ते बाद मेरे पास पता नहीं कैसे करके गाड़ी आ गई, और उसके आने के फौरन बाद 2-3 माह किसी ने मुझे प्रीचिंग के लिए बुलाया ही नहीं। मैं परेशान होकर बैठ गया। मैं क्या, खुदावंद गाड़ी आई है तो कोई बुला नहीं रहा आप। ये खुदा के साथ पर्सनल रिलेशन की बात मैं कर रहा हूँ। तो मेरे दिल में ये बात खुली कि तू गाड़ी पर भरोसा करता है, गाड़ी होगी तो मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा।
पिछले दिनों मैं मरी गया, एक कॉन्फ्रेंस थी, गाड़ी लेकर साथ चला गया, गाड़ी ख़राब हो गई, ज्यों 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਜਨ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਡ ਗਿਆ, बड़ा मैं परेशान। फिर गाड़ी मेरे पास नहीं, गाड़ी बनवाने के लिए खड़ी है, तो खिदमत फिर से शुरू हो गई। मैं क्यों खुदावंदे की है, तो मेरे दिल में खुदा ने डाला कि मैं तेरी गड्डी दा मोहताज नहीं, तेन इस्तेमाल करने लई, मैं इसके बगैर भी तुझे इस्तेमाल करता रहूँगा, तू गड्डी ते ना भी जा, बाइक ते टुर जा, वेखी मैं तेन इस्तेमाल करांगा। मुझे तसल्ली हो गई, गाड़ी नहीं है मेरे पास, लेकिन इस वक्त मैं ज़्यादा खुश हूँ, उस पर काफ़ी पैसे लगने वाले हैं, मैं फिर भी खुश हूँ, मुझे कमी नहीं महसूस हो रही। जिसका खुदा चौपान होता है, जिसका खुदा के साथ रिलेशन होता है, उसकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन की ब्लेसिंग आ जाती है, उसको कमी महसूस नहीं होती। अगर खुदा तेरा चौपान नहीं, एक गाड़ी क्या 3-3 गाड़ियां तेरे गैराज में खड़ी हों, एक घर क्या 4-4 घर तेरे पास हों, एक बैंक बैलेंस क्या 4-4 बैंक्स में तेरे अकाउंट हों, तेरे दिल में कमियां ही रहेंगी, तू खाली ही रहेगा, तू बेचैन ही रहेगा, तू आवारा ही रहेगा। लेकिन अगर खुदा तेरा चौपान, इस्राएल के खुदा के साथ तेरा रिलेशन, उसके साथ तेरा नाता, जेब खाली भी क्यों ना हो, कमियां तेरी जिंदगी में क्यों ना हो। दाऊद ने जब ये लिखा, वो बादशाह नहीं था, वो एक चरवाहा था, वो रद्द किया हुआ नौजवान था, जिसका घर भी उसको वो हैसियत नहीं देता था जो बाद में खुदा से देने वाला था। कोई नहीं जानता था उस वक्त ये इस्राएल का बादशाह होगा, लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ, वो माला माल, वो दौलतमंद। क्यों? क्योंकि आसमान का खुदा, जिसने गैलेक्सीज को बनाया, जिसने आसमान को तंबू की तरह तान दिया, जो सारी दुनिया को माला माल करता है, उसके साथ उसका डायनामिक रिलेशन, लिविंग रिलेशन, जिंदा रिश्ता, इसके सबब से वो कहता है मैनू कमी नहीं, खुदावन मेरा चौपान है। प्रेज गॉड। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, ये मुझे चाहिए, मुझे ये मिलता है। अगर खुदा तेरा चौपान है, प्रोविजन मिलेगी, जो तुझे ज़रूरत है मिलेगी, वक्त पर सब कुछ मिलेगा। खुदा तेरी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी करेगा, खुदा तेरी फिजिकल नीड्स पूरी करेगा, खुदा तेरी रूहानी ज़रूरियात पूरी करेगा। यहाँ पर हरी हरी चरागाहें, राहत के चश्मे, इनको 2 चीज़ों से मैं ताबीर कर सकता हूँ, खुदा का कलाम और खुदा की हजूरी। जिन लोगों के पास ये 2 चीज़ें हैं, वो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, वो गरीब लोग नहीं। खुदा के कलाम से उनका दिल भरा, खुदा के वादों से उनका दिल भरा, खुदा के कलाम से वो सैराब होते, खुदा की हजूरी में वो जीना सीख गए हैं, वो ताजगी हासिल करेंगे। वो मेरी जान को बहाल करता। इसके पीछे एक स्टोरी है, ये सुनाने के लिए मुझे ज़रा आगे आना पड़ेगा। उस वक्त की जो भेड़ें होती थीं फ़लस्तीन के अंदर, अगर उनके बाल ऊन ना काटी जाती, बड़ी हो जाती, और चूँकि फ़लस्तीन का मौसम गर्म होता था, तो वो अपने लिए खड्डे खोद लेती, ताकि वो उन खड्डों में लेट जाएं और उनको थोड़ी राहत मिले। जब वो उन खड्डों में खुद ही खोद कर लेटती, तो बड़ी ऊन होने के सबब से उनकी ऊन पर कचरा, मड, कीचड़ वो लग जाता, वो भारी हो जाती। तो ऐसी हालत में जब वो खड्डे में आराम कर रही होती, तो वो उल्टी हो जाती, उनका धड़ नीचे और टांगे ऊपर को, और ये एक ट्रेजेडी होती थी भेड़ के लिए। अगर ऐसी हालत में भेड़ वो 15 से 20 मिनट रहती, तो उनका जो खून होता वो सर्कुलेशन ख़राब हो जाती, उनकी टांगों का खून कहाँ चला जाता? दिमाग के अंदर, नसें वो फूलना शुरू हो जाती,
اور آہستہ آہستہ وہ انسان بے ہوش ہونا شروع ہو جاتی۔ ایسی حالت میں اگر چرواہا جلد سے جلد بھیڑ کو نہ ڈھونڈے تو بھیڑ ہلاک ہو سکتی تھی، لیکن جب بھیڑ ملتی چرواہا جلدی سے جاتا، اسے پکڑتا، اپنی ٹانگوں میں لے لیتا اور پھر اس کی جان کو بحال کرتا، اس کو سہلاتا، بار بار سہلاتا، تب تک سہلاتا جب تک کہ اسے ہوش نہیں آ جاتی، جب تک کہ اس کی باڈی میں سرکولیشن ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ ہمارا حال گری ہوئی بھیڑ کی مانند اکثر ہوتا ہے۔ مڈ ہمارے اوپر وہ جم جاتی ہے، کیچڑ ہمارے اوپر جم جاتا ہے، گناہ کی دھول ہمارے اوپر جم جاتی ہے۔ ہم سہل پسند زندگی اس کو گزارنا چاہتے ہیں، ہم سست مسیحی اکثر بن جاتے ہیں۔ ہاں تو سست ہے، تو بھیڑ ہے، لیکن تیرا چرواہا وہ عام چرواہا نہیں، اس نے تیری خاطر بھیڑیوں سے جنگ کی ہے، اور اس جنگ میں اس نے اپنی جان دی ہے۔ وہ تجھے ایسی حالت میں جب پاتا ہے، وہ تجھ پر الزام نہیں لگاتا، وہ تیری عدالت کرنے کے لیے نہیں بیٹھ جاتا، وہ تجھے ڈانٹتا، چھڑی کے ساتھ مارتا نہیں ہے، وہ فوراً تیری جان کو اپنی حضوری سے سہلانا شروع کر دیتا ہے، اپنے کلام سے سہلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو مت ڈر، میں ابھی بھی تیرا چوپان ہوں، تجھ سے گناہ ہو گیا، تو مت ڈر، تو اپنے گناہ پر غالب نہیں آ پا رہا، تو مت ڈر، تو گناہ میں اٹا ہوا ہے، مت ڈر، تو گرا ہوا ہے، تیری زندگی میں روحانی سرکولیشن، خون، کلام، روح القدس کی قدرت یہ نہیں ہے، تو مت ڈر، بس میرے حضور میں آ جا، میں تیری جان کو بحال کروں گا، پھر سے میں تجھے کھڑا کر دوں گا، پھر سے تو لکھا ہے اپنے نام کی خاطر، کس کی خاطر؟ صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ چل ہون، تیری جان بحال ہو گئی، پھر سے صداقت کی راہوں پر ہو لے۔ ایسے چوپان کے لیے شکر گزاری۔ آگے کیا ہے؟ اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو۔ ونڈرفل۔ یہ بھیڑ کے پورا سال داؤد نے یہاں پر لکھا ہے۔ ایک موسم ایسا آتا، چرواہا بلند پہاڑیوں کی طرف بھیڑوں کو لے کر نکل پڑتا، راستہ بڑا خطرناک ہوتا تھا، موت کے سائے کی وادی کی طرح۔ جو درندے ہوتے وہ تاک میں رہتے، کس وقت بھیڑوں کو پھاڑ کھائیں۔ اس کو موت کے سائے کی وادی کہا جاتا تھا۔ کیا لکھا ہے؟ خواہ میرا گزر موت کے سائے کی وادی میں سے ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، پاویں شیر ہوئے، پاویں رچ ہوئے، پاویں بھیڑیا ہوئے، چاہے سانپ ہو، کچھ بھی ہو، میں نہیں ڈروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ پریزنس آف گاڈ۔ اور یہ وہ وقت ہوتا تھا جس میں بھیڑیں ساتھ ساتھ لگ کے رہتی، چرواہے کے ساتھ ساتھ رہتی، اس کے پالو کے ساتھ چمٹی رہتی، اس کے عصا کے قریب قریب رہتی، اور کئی بھیڑیں تو ایسی بھی ہوتی جن کو وہ اپنے بازوں پر، کندھوں پر اٹھا لیتا۔ بھیڑوں کے لیے موت کے سائے کی وادی میں سے گزرنے کا وقت چرواہے کی قربت کا وقت ہوتا تھا۔ جب تو موت کے سائے کی وادی میں سے ہو کر گزرے گا، وہی وہ وقت ہوگا جب خدا تیرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، تو اس کی قربت کا طالب ہوگا۔ کیا لکھا ہے؟ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ جو عصا ہوتا تھا یہ کس کے لیے ہوتا تھا؟ بھیڑیے کے لیے۔ اور لاٹھی کس کے لیے ہوتی تھی؟ بھیڑ کے لیے۔ جب درندہ بھیڑوں کے پاس آتا تو چرواہا کیا استعمال کرتا؟ ایک عصا ہی کافی سی۔ اور جب بھیڑیں وہ راستے سے بھٹکتی، غلے سے باہر نکلتی، پروٹیکشن سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی، تب وہ کیا استعمال کرتا؟ کیا پروٹیکشن ہے! میں 99% اس چرواہے کی محافظت میں محفوظ نہیں، میں 100% محفوظ ہوں۔ وائی؟ جب بھیڑیا آئے گا تو وہ عصا نکال لے گا،
जब मैं बेवकूफ़ी करूंगा और दरिंदे की तरफ जाऊंगा वो लाठी निकाल लेगा। क्या प्रोटेक्शन है, ना वो दुश्मन को मेरे पास आने देगा ना मुझे दुश्मन के पास जाने देगा। प्रेज़ गॉड। वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। जब खुदा तेरे साथ, पूरा आसमान तेरे साथ, जब खुदा तेरे साथ, मिकाईल और उसकी फौजें तेरे साथ, क्योंकि वो लश्करों का खुदा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। हुक्म फरिश्तियां नूं असी नहीं दे सकते। रात को ही मैं एक बंदे की गवाही सुन रहा था, केविन बेस्कोनी। वो कहता है मुझे खुदा ने कहा प्रोविज़न के फरिश्ते को हुक्म दे। आई डिसएग्रीड विद दैट। फरिश्तों को हम हुक्म नहीं दे सकते, वो किसी दिन नहीं मानते। और सिर्फ किदी मानते ने? खुदा के कलाम, किसके मुंह से जो हुक्म निकलता है। बिलीव में जब आप ज़बूर 23 को बोलते हैं, बाय फेथ फरिश्ते सुनते हैं, उनके कान वो लग जाते हैं। ये खुदा का कलाम है, इसी को हम मानते हैं। फरिश्ते रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं नेगेटिव अल्फाज, इसराइल की तरह असी तो इत्थे मरना हो, फिर डीमंस, वो हवा की अमलदारी का हाकिम, वो फिर कहता है ठीक है तेनू नपांगे आके सही तरह हो, अब तुझे पूछेंगे। बहुत सारी टेस्टमनीज हैं। बिली ग्राहम का पैगाम मैं ज़बूर 23 पर सुन रहा था। वो बयान कर रहा था फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी एक शख्स की। वो ज़बूर 23 बाय हार्ट, नॉट बाय हेड। हाँ, बाय हार्ट और बाय हेड में फ़र्क होता है। दिल से उसने ज़बूर 23 डेली बोलना शुरू कर दिया। खुदा ने उसकी लाइफ में फाइनेंशियल मिरेकल्स करना शुरू कर दिए। फरिश्ते सुनते हैं ये बातें। तो फरिश्ते किस चीज़ को सुनकर हरकत में आते हैं? खुदा के कलाम को। क्या आप खुदा के कलाम को बोलते हैं? असी तो बड़ा बोलने हैं, लेकिन बोलते क्या हो? ये गौर करें। कई कहते हैं जुबान लै के पैदा हुए हैं, कोई गुंगे तो नहीं है, बोलने लिए पैदा हुए हैं। हम बोलेंगे, हमें कौन रोक सकता है? खुदा दे नाल भी ओही जुबान, आदमियां दे नाल भी ओही जुबान, सबके साथ वही जुबान। जुबान बड़ा मैटर करती है। मैं क्या कहता हूँ खुदा के बारे में? तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे। क्या खूबसूरत खुदा है। ये दस्तरखान जो लफ्ज़ है, आज भी फ़लस्तीन में चरवाहे इस्तेमाल करते हैं चरागाहों के लिए। जो चरवाहा होता था वो पेशगी उस जगह पर पहुंच जाता जहां उसने भेड़ों को लेकर जाना होता था। लो जी, जिन्ना जिन्ना दा ते यसू चरवाहा है, उन्हां दे दिल ते ठा करके गल वजेगी, क्योंकि उन्हां दे चरवाहे दी गल हो रही है ना। ते जिन्ना दा ते नहीं, उन्हां नूं कोई परवाह नहीं। उन्हां दे लई सिर्फ आयतां, थोड़ी जी तफसीर, कोई नवी गल, हाँ, उस ज़हन च सिर्फ इत्थों तक रह जानी है, इत्थों थल्ले नहीं जानी। मैनूं अक्सर क्लास च भी गल्लां याद आ जांदियां ने, प्रीचिंग के दौरान भी आ जांदियां ने। एक गल याद आ गई है। दो चींटियां सन, पंजाबी च चोखा मज़ा आएगा, आई प्रोमिस। मैं अपनी प्रोफैसरी ला छड़ना होना जो कलाम में सुनाना ना, मेरी प्रोफैसरी आपको ब्लेस नहीं करेगी, वो क्लास की हद तक होती है। दो चींटियां सन, एक चींटी एक दिन ना, वो दोवें गोए च रहिंदियां सन। गोया यू नो, गोबर, हाँ, गोबर के अंदर वो रहती थी। ऐ हुण सही समझ आया होना। एक दिन एक चींटी ओपन सारी दी दुकान ते टुर गई। उथों ने गिरी बदाम रज के खाधे। एदा तो कोई टेस्ट वखरी है, ये तो गोए नाल फर्क है। वापस गई, अपनी सहेली नूं जाके कहन लगी, तू की गोए च पई रहनी है, चल मेरे नाल, अज मैं तेनू ऐसियां शैवां खुआवांगी जिहड़ी तू कदी नहीं खादियां। चलो चलने आ। पहला तो मन्ने ना, जे मन्नी तो ठीक है जी। वाह वाह उन्हें सफ़र किया, पंसारी की दुकान ते पहुंचिया, चंगा रज के खादा। हाँ सुना, तेनों आख्या सी ना, मैनू तो कोई मज़ा नहीं आया, मैं तो गोए च चंगी सा, इन्ना तो पैदल टराया इतों तक लैके आई, कोई मज़ा, कख मज़ा नहीं आया। है तेन मज़ा ही नहीं आया? उन्हें कहा जरा अपना मूँह खोले ना। तो जो उन्हें मूँह खोले तो पिछले दंद विच गोया फसिया सी। उन्हें कहा गोए की वजह तो तेनों मज़ा नहीं आया।
ऐसा ही बिलीवर्स होता है। ये जड़ा गोया फसिया है ना दिमाग दे विच, ये नहीं कलाम अंदर ठहरन दिंदा। मज़ा ही नहीं आया, कुछ समझ ही नहीं आई, वो गल ही नहीं बनी। भाई कोई खराबी है, कोई मसला है तेरे साथ। तू अपनी जेब ना गुनाहां नाल भरी है, बटवा फुल है तेरा, किसी नूं नज़र नहीं आउंदे लेकिन खुदा नूं नज़र आउंदे ने। खुदा जानता है तू गोबर को अपने साथ साथ रखता है, इसलिए तुझे यस्सु की बात करें, चरवाहे की बात करें, इसलिए तो ठा करके वजदी नहीं तेनों, इसलिए तो रेवलेशन नहीं बनता तेरे लिए, इसीलिए तो वो मुकाशफा नहीं बनता। वो तेरा चुपान होए तो फिर ना गल किसी अपने दी होवे ना, ते जिद नाल प्यार होवे बंदा ध्यान नाल सुनदा है, कोई गल ना मिस हो जाए। मुझे याद है वो कितने खूबसूरत दिन थे। आपकी तरह मैं चर्च में बैठता था, मैंने रजिस्टर्ड भरे हुए हैं मैसेज लिख लिख के। मेरा पास्टर जब सुनाता मैं एवरी सिंगल वर्ड कॉपी कर लेता। वो मेरी रूह की ग़िज़ा होती। कलाम तो ईमानदारों की रूह की ग़िज़ा है। जैसे जैसे सुनते उनका बातिन भरता जाता है, भरता जाता है, वो फुल होते जाते हैं। चरवाहा पहले जाता चरागाहों में, वहां देखता चश्मों के अंदर कोई घातक खतरनाक पत्थर तो नहीं जो मेरी भेड़ों को जख्मी कर दे, कोई चरागाहों में घास के अंदर कोई जहरीली बूटी तो नहीं, वो चुन चुन कर निकालता, चश्मों को तैयार करता, दस्तरखान वो बिछा देता और दरिंदे भी देखते रहते। यहाँ पर भेड़ें आएंगी, यहाँ पर ही चरागाह दस्तरखान सजा है, लेकिन चरवाहे के हाथ में असा देखकर वो पीछे रहते। हमारे खुदा का ये खासा है, लातादाद बदरूहें, मक्खियों का आका बलजबूल उसकी कुव्वतें, हमारी तादाद से ज्यादा हमारे चौगिर्द बिन बिनाती रहती हैं। इब्लीस के बड़े मंसूबे, इब्लीस के बड़े प्लान, उसकी सारी कुव्वतों के बावजूद खुदा उसकी आंखों के सामने अपनी भेड़ों के लिए, ईमानदारों के लिए, मुकद्दसीन के लिए बरकत का दस्तरखान बिछा देता है। वादे पूरे होते हैं, नबुवतें पूरी होती हैं, कलाम पूरा होता है, और फिर तूने मेरे सर पर तेल मला है। एक ख़ास किस्म की मक्खी होती थी, वो बिन बिनाती हुई नथनों के ज़रिए दिमाग के अंदर घुस जाती, और जब ये घुस जाती भेड़, उसको उलझन होती, वो दीवार चट्टान उसके साथ टकरे मार मार कर मर जाती। कोई इलाज इसका नहीं था, इसके लिए ख़ास एक ऑयल चरवाहा तैयार करता, वो पहले से ही भेड़ों के सर पर डेली लगाता। क्या सिक्योरिटी है। फिर इसको मैं कहूँगा, ए तेल खुदा दा कलाम, ये तेल रूहुल कुद्स की अनॉइंटिंग, ये रूहुल कुद्स की बरकत, उसकी हमारी ज़िंदगी में हजूरी। जब ये तेल सर के ऊपर लगा हो ना, फ़िक्रों की मक्खियाँ, डिप्रेशन की मक्खियाँ, कम एतकादी की मक्खियाँ वो इर्द गिर्द बिन बनाएंगी ज़रूर, लेकिन वो तेरे दिमाग में जगह नहीं कभी बनाएंगी। आजकल हमने जदीद नाम दिए हैं फ़िक्रों को। मुझे डिप्रेशन हो गया जी, मुझे पैनिक अटैक हुआ है जी, डिसेंट नाम हमने दे दिया। भाई ये कम एतकादी है। सीधा सीधा जो बाइबल ने क्या है, तू कम एतकाद हो गया, तेरे अंदर ना मक्खियाँ घुस गई ने, तू तेल नहीं सही तरह लवाया। सीधी जी गल है, मुझे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, मुझे कुछ सेशन चाहिए काउंसलिंग का। ये अच्छी बातें हैं, तेनू तेल चाहिए, ज़रा चंगी तरह चसा खुदा दी हजूरी च बह के, थोड़ा टाइम ला, खुदावन ज़रा चस चंगी तरह, ये मेरियां जड़ां तक जावे, रूट तक जावे, फिर मक्खियाँ तेरे करीब नहीं आएंगी। जब इतनी भलाई भेड़ देख लेती है तो वो क्या कहती है, होन तो मेरा प्याला लबरेज ही हो गया, होन तो छलक दी है प्या, मैनू टेंशन ही नहीं कोई है। तुसी अक्सर नचदे जे म्यूजिक दी थाप ते, नचना तो यस्सू दे लई उदों होया जदों कलाम नचाए, अंदर कलाम होवे, यस्सू दी मुहब्बत होवे, हैं फिर खुशी होवे, फिर नचन नू दिल करे कि मेरा प्याला तो लबरेज है,
फिर कोई शक ही नहीं रहा। यकीनन भलाई और रहमत कितने दिन, इब्रानी में है हर दिन मेरे साथ साथ रहेंगी। एवरी डे व्हेन यू वेक अप से दिस, आज भी भलाई और रहमत मेरे साथ साथ है। और मैं हमेशा कहां सुकूनत करूंगा? मैं सुकूनत डेरे ही ला लेना है। ये घर पता क्या है? खुदा की हजूरी, खुदा के साथ रिलेशन। फाइनल बात जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं, खुदा दे नाल दूरों दूरों जिदी सलाम दुआ, हफ्ते बाद ओदा चरवाहा वो नहीं। ठीक है जी, चरवाहा वो उसका जिसकी सुकूनत उसकी हजूरी में, जो उसकी हजूरी में एलिया की तरह जिंदा रहना सीख गए हैं। क्या आप उसकी हजूरी का तजुर्बा रखते हैं? आज भी बारिश हुई, टक्कन खोलना याद रहा कि नहीं? आई ओपन माई हार्ट फॉर यू, कम इनसाइड। तेरी ये जगह है, ये जगह मैंने तेरे लिए रखी हुई है और कोई नहीं है। इसमें जो तख्त है इस पर तू बैठेगा। तू मेरी जिंदगी में अल्फा ओमेगा हो, मेरी जिंदगी की हरूफ तहज्जी में तू अल्फा ओमेगा, मेरी जिंदगी में तू अव्वल और आखिर, तू इब्तिदा और इंतहा। मेरी जिंदगी तुझसे शुरू होगी, सब कुछ तू ही है। मेरी जिंदगी का ऑर्बिट तेरे चौगिर्द घूमेगा। तू आफ्ताब सदाकत है, मेरी जिंदगी के सारे सैयारे ये तेरे चौगिर्द ही घूमेंगे। कुछ मैं पीछे नहीं रखूंगा। यस्सु सब तेरा, तू मेरा, मैं तुझ में, तू मुझ में, हम दोनों एक दूसरे में। तू मीलों दूर अननोन रैलम के अंदर कहीं बैठा हुआ पुरसरार खुदा ना रह जाए, तू मेरा खुदा बन जाए। तू कौमों का खुदा तो है लेकिन तू मेरा खुदा बन जाए। तू नबियों का खुदा तो है, तू मेरा खुदा बन जाए। तू दाऊद का खुदा, रसूलों का खुदा तो है, तू मेरा खुदा बन जाए। ऐसा रिलेशन मैं तेरे साथ चाहता हूं। लो ना तेनू तसल्ला मिलिया ते तुहाडा चंदा वापस है। पास्टर अमन नू मैं कहांगा वापस कर दियो चंदा इन्हां दा। I'm just kidding। जो यस्सु दे नाल रिलेशन होवे ना तो मैनू बड़ा मजा आउंदा है गल कहन दा। तसल्ली नहीं मिलती, की मिलता है? एडा वड्डा तसल्ला मिल जाता है। यदि ज़्यादा समझ आई है ना? तसल्ली दी सुपरलेटिव डिग्री है। तसल्ली छोटी ते तसल्ला बहुत वड्डा, लफ्ज़ां च बयान नहीं हुंदा जिन्हां दा यस्सु खुदा होवे।